Yeah, what today I have for you? Today I have for you critical appreciation of Ode to the West Wind. Ode to the West Wind is an ode composed by P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley, a romantic poet with revolutionary thought. The poem is written in terza rima, an Italian stanza was found. It has 5 stanzas, 5 स्टैंजाज में है और पोयम को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं समझने के लिए। तो उसी चीज को मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ फाइल, एंड यू विल कम टू नो कि को लेकर के आई थिंक इट्स विजिबल हियर यू फाइंड कि इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. yeah, you find ki it's a blog written by Anwar Ahmed. Anwar Ahmed has written this beautiful blog, and on his blog he has written about Ode to the West Wind. And you find ki Ode to the West Wind, one of the major characteristics of romantic poetry is the description of nature. बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बताई है कि रोमांटिक पोइट्री की एक खासियत होती है, वो क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर. Whether you talk about John Keats, if you talk about P.B. Shelley, S.T. Coleridge, William Wordsworth, William Blake, James Thompson, Thomas Gray, they all talk about nature. They all describe the beauty of nature. It is the most important element of romantic poetry, although John Keats made his name in creating natural imagery. Shelley's contribution was also remarkable in this regard, as evident from line-by-line explanations of Ode to the West Wind. In his poem, Shelley, with his imaginative power, creates a romantic sensation. Shelley creates a romantic sensation. Shelley, with his imaginative power, creates a romantic sensation. He creates beautiful natural paintings in the form of words that his readers can easily imagine. No doubt Shelley's powerful imagination, like other romantic poets, help him to express an idea in the form of poetry. तो शैली में एक इमेजिनेटिव पावर है, वही इमेजिनेटिव पावर ही इस तरह की पोएम्स को कंपोज करने में मदद करती है, जो हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने एक इस पैसेज में कुछ नहीं बताया, केवल एक पॉइंट बताया गया कि रोमांटिक पोइट्री की खासियत क्या थी? डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये काम शैली ने भी किया है, ये काम जो है कीट्स ने भी किया हुआ है। और जो शैली है वो इस तरह से उनके अंदर इमेजिनेटिव पावर है कि इट क्रिएट्स अ रोमांटिक सेंसेशन। ये चीजें उन्होंने बताई, 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इट इज नेसेसरी फॉर एन ode writer to create lyrical stanzas as ode are usually lyrical. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ओड होता है वो हमेशा ज्यादातर लिरिक फॉर्म में होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है। और ओड के बारे में यही कहा जाता है कि ओड इज लॉन्गर द लिरिक प्रॉपर। ओड एक ऐसा पोएम है जो लिरिक से बड़ा होता है, एड्रेसिंग फॉर्म में होता है। In an ode, a poet always expresses his joy for an event or he glorifies natural objects. Shelley's odes are also lyrical. In fact, he is known just for writing poetry with a strong lyric structure. Ode to the West Wind is a strong example in which his imaginative explanation of nature proves that he writes structural poetry with lyrics. Ode to the West Wind, explanation and analysis you find here. And what is the poet in this ode glorifies nature. He personifies the wind. ठीक है, नेचर को उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ही पर्सोनिफाइज द विंड एंड असाइंस इट ह्यूमन पावर। उन्होंने विंड को क्या किया है? पर्सोनिफाइड किया है, और उसमें जो है वैसी शक्ति देखते हैं जैसे जो ह्यूमन पार्ट्स होता है। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन द ऑटम सीजन। उन्होंने बताया है कि जो वेस्ट विंड की वो बात कर रहे हैं, यह वेस्ट विंड ऐसी है कि ऑटम में सारी चीजों को बर्बाद कर देती है। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन ऑटम। तो इसका मतलब
वेस्ट विंड इज द ब्रिंगर ऑफ ऑटम, वेस्ट विंड इज द जनरेटर ऑफ बोथ ऑटम एंड स्प्रिंग। जो वेस्ट विंड है वो ऑटम और स्प्रिंग को जन्म देती है, और आटम में वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन द आटम सीजन। इन लिटरेचर पोएट्स एंड राइटर्स यूज द आटम सीजन टू एक्सप्रेस थीम्स ऑफ डिस्पेयर। जब भी आटम को यूज किया गया है तो किसकी थीम को रिप्रेजेंट करता है? आटम सीजन टू एक्सप्रेस थीम्स ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब ये होता है कि हतोत्साहित हो, करेज होना, उसके लिए आता है डिस्पेयर। तो यू फाइंड कि जो ऑटम टू एक्सप्रेस थीम्स ऑफ डिस्पेयर, सीजन टू एक्सप्रेस थीम्स ऑफ डिस्पेयर। शेली आल्सो डज द सेम। शेली ने भी आटम को जो यहाँ पे प्रेजेंट किया है वो डिस्पेयर को दिखाने के लिए। डिस्पेयर का मतलब निगेटिविटी है एक तरह का, उसको दिखाने के लिए। मैंने आपको बताया था कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सोशल नॉर्म्स। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, और जो पीपल का बिलीविंग इन गॉड था, उसको लेकर वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उनका अपना एक आइडियोलॉजी था, उस आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। बाकी हर आदमी का अपना अपना थॉट होता है, वो कैसे रहता है, कैसे खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, अपना अपना विचार होता है। शेली आल्सो डज द सेम। इन दिस पोएम ही क्रिएट्स अ मेलंकलिक एटमॉस्फेयर फॉर विच ही यूजेस द नेचुरल ऑब्जेक्ट वेस्ट विंड। इसमें जो एटमॉस्फेयर है कैसा? मेलंकॉलिक एटमॉस्फेयर। व्हाट इज मेलंकॉलिक एटमॉस्फेयर? एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें शेली को बहुत ही उदासीन है। शेली इज नॉट एक्टिव हियर, but it seems that Shelley is an inactive person. He has thought, but he is not satisfied, does not have any joy. Such situation is melancholic atmosphere. The poem contains five stanzas. जो poem 5 stanzas में वियाल्नो, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। Ode to the West Wind, explanation and analysis. Now you find the poet in this ode glorifies nature. He personifies the wind and assigns it human power. It destroys everything in the autumn. वही वही स्टैंजा दोबारा आ चुका है, autumn season. In literature, poets and writers use the autumn season to express themes of despair. Shelley also does the same. In this poem, he creates a melancholic object, west wind. जो इसमें in this poem he creates a melancholic atmosphere for which he uses the natural object west wind. West wind एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया। The poem contains 5 stanzas, but the subject matter of the poem remains the same in all stanzas. एक ही सब्जेक्ट मैटर लिया गया, वेस्ट विंड, उसका प्रभाव। वेस्ट विंड का क्या प्रभाव? आटम की वजह से क्या होता है, स्प्रिंग की वजह इसके समय क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी में क्या उसका असर है, अटलांटिक ओशन में क्या है। फिर पोएट का क्या विचार है कि वेस्ट विंड जो है उसके अंदर ऐसी शक्ति देखी, उसका विचार पूरी दुनिया में फैल जाए। नाउ स्टैंजा 1। स्टैंजा 1 में यू फाइंड कि द पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस द वेस्ट विंड। जो पोएट है वो वेस्ट विंड को डायरेक्टली एड्रेस करता है एंड शोज हिज रीडर्स द पावर ऑफ द विंड। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएट डिस्क्राइब्स अ नेचुरल फिनोमेना, जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पहले स्टैंजा में वो एक नेचुरल फिनोमेना डिस्क्राइब करते हैं, और वह क्या है? जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। In apparent meaning, the poem talks about the capabilities of the wind. The wind is invisible, yet it can scatter the leaves. The wind is invisible, yet it can scatter the लीव्स। जो विंड है वह इनविजिबल है, मैंने आपको पहले बताया कि वह एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसको कंक्रीट दिखाया गया कैसे? पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन जो विंड इनविजिबल है वह किसको स्कैटर कर देती है? लीव्स को स्कैटर कर देती है। दिस लीव्स का स्कैटरिंग का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लीव्स मीन्स द स्कैटरिंग ऑफ द डेड वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज। क्योंकि जो भी आप कह सकते हैं विंड जो है जिन लीव्स को स्कैटर करती है, दे आर द डेड लीव्स। अगर लीव्स पेड़ों की टहनियों से लगी होगी तो स्कैटर नहीं होगी। जब आटम आता है तो सारी की सारी लीव्स डेड हो जाती है, उनका कलर बदल जाता है, और जैसे विंड चलती है तो दे आर स्कैटर हाइदर एंड डाइदर। ही डिस्क्राइब्स कलर्स ऑफ लीव्स। वो दिखाते हैं कि जो कलर्स है जो लीव्स का वो कैसे है,
येलो है, ब्लैक है, व्हाइट है एंड रेड है। ये जो कलर्स है लीव्स का, यह इंडिकेट करता है कि कैसे जो है आटम का असर होता है और कैसे एक चीज जो अपनी जो जीवित होती है, अगर वो जो है ओल्ड हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उसको ड्राइव इन आउट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से वो ये कहते हैं कि जो भी ट्रेडिशन है, जिसपे लोगों का विश्वास है, जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर उसका कोई वैल्यू नहीं, तो दोज इंस्टीट्यूशन वेदर दैट इज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, if it does not have any value, it must be removed away. द विंड मूव्स देम लाइक अ सिक पीपल। जो विंड की है वो कैसे दिखाई गई, लाइक द सिक पीपल। ही यूजेस दिस एग्जांपल इन हिज ओड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द रोल ऑफ द वेस्ट विंड। लीव्स कैन नॉट मूव स्पॉन्टेनियसली, therefore it is the wind which helps them to move from one to and other. Almost every person in the earth has felt the west wind, but no one has ever felt in such a way as the poet shows explanation in his ode. It is the wind that spreads the seeds. It's a very important point. अभी तक तो उन्होंने किसका कहा, स्कैटरिंग ऑफ द लीव्स का उन्होंने बताया। और एंड द लीव्स आर द सिंबल ऑफ व्हाट, येलो, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड लीव्स आर द सिंबल ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन एंड ओल्ड वैल्यूज। मतलब कि जब कोई भी ग्रीन लीव येलो में चेंज हो जाए, ब्लैक में चेंज हो जाए, व्हाइट में हो जाए, रेड में हो जाए, तो इसका मतलब कि वह क्या हो चुकी है, आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है, इररिलेवेंट हो चुकी है। तो विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट विंड इट विल बी स्कैटर्ड। तब वो उसके बाद वो कहते हैं कि वही वेस्ट विंड क्या करती है, वेस्ट विंड इट इज द विंड दैट स्प्रेड द सीड्स। और जो वेस्ट विंड है वह बहुत सारे बीज को भी स्प्रेड करती है, फैलाती है। Almost every person in the earth has felt the west wind, but no one has ever felt in such a way as the poet shows explanation in his own. It is the wind that spreads the seed. करे ये विंड ही है जो स्प्रेड करती है द सीड्स को इन आटम एंड बरीज देम, और वे दफन हो जाते हैं खेतों में। कब तक, जब तक कि विंटर नहीं आ जाता। सब्सिक्वेंटली द सीड्स स्टार्ट ग्रोइंग इन द स्प्रिंग सीजन, और विंटर तक वे दफन रहते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो वही जो है से ग्रो करने लगते हैं। यू फाइंड स्टार्ट टू ग्रो, दे स्टार्ट टू grow. It is the wind that spreads the seeds in autumn and buries them. Subsequently, the seeds start grow in the spring season. So I think you are getting these points. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप में से रिस्पॉन्स मुझे कर दीजिए। सबको क्लियर हो रहा? जी सर। हाँ, यस सर। आपको 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 जो है दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और वो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नंबर वन जो आपको ध्यान में रखना है वह कौन सा है, कि स्प्रिंग का। नंबर वन स्प्रिंग का। नंबर टू आटम का। आटम चीजों को क्या करेगी, ओल्ड वैल्यूज को, लीव्स को, जो ब्लैक है, रेड है, उन सबको जो है स्कैटर करेगी, इररिलेवेंट होगा। और फिर उसके बाद जो है साथ ही साथ वो सीड्स को भी स्प्रेड करेगी, और सीड जो है यहाँ वहाँ बिखरा रहेगा, लेकिन स्प्रिंग सीजन में वो जो है उसका इट 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 इज जर्मिनेटेड, वो फिर से आता है। इफ द वेस्ट विंड इज मेलंकलिक देन एट द सेम टाइम इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट्स। जो वेस्ट विंड है ये पुरानी चीजों को खत्म करती है, और न्यू प्लांट्स जो है क्या होते हैं, जन्म लेते हैं ऑन द अर्थ। लेकिन न्यू प्लांट्स कब जन्म लेते हैं, जब वेस्ट विंड brings spring. In the spring season, the new plants growth on the earth. Apart from this, wind also spreads the fragrance of flowers while scattering them either here and there. और जो फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स है, फूलों की जो खुशबू है, वो भी स्प्रिंग में हम देखते हैं कि हिल पर, तमाम जगहों पर फैल जाती है। In this stanza, readers do not only realize Shelley's treatment of nature as an object of prime inspiration, but also a source of natural phenomena. We see wind as an alive object. जो विंड है वह क्या है, अलाइव ऑब्जेक्ट है ऑफ नेचर। अलाइव मतलब जीवित है, उसको एक ह्यूमन जैसा शेप दिया गया, विच परफॉर्म्स एन एक्शन
फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। और जो विंड है उसका जो एक्शन है वह क्या है, वेलफेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी, मानवता के कल्याण के लिए, ह्यूमैनिटी के कल्याण के लिए। He imagines the power of wind and shows to his readers that wind is definitely a source of ingenuity. He imagines the power of wind and shows his readers that wind is definitely a source of ingenuity. जो wind है वह source of ingenuity है, ज्ञान का, वह source है पार का, वह source है sensation का, वह source है जो है नए विचारों का। स्टैंजा सेकेंड, तो स्टैंजा फर्स्ट में स्प्रिंग का भी जिक्र किया गया, स्टैंजा फर्स्ट में आटम का भी जिक्र किया गया। स्प्रिंग नई चीजों को जन्म देता है, आटम पुरानी चीजों को खत्म कर देता है, बहुत सारे बीजों को जो है खेतों में ले जाकर के स्प्रेड कर देता है, विंटर तक वो वहां रहते हैं और फिर वही नए रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। फूलों की खुशबू वगैरह भी जो है पहाड़ियों पर तमाम जगहों पर हमें देखने में मिलती है। Stanza second, wind not only scattered the leaves but also moves the cloud in the sky. केवल वो leaves को ही scatter नहीं, wind not only scatters the leaves but also moves the cloud in the sky. उसको जो क्लाउड को भी मूव करती है। कुल मिला के काइनेटिक इमेज है, एक्शन वाला इमेज, मूविंग का दिखाया जा रहा है। Without wind, clouds are helpless, just like the leaves and flowers are powerless on earth. It seems that poet just praises the beauty and duty of the west wind. Poet just praises the beauty and duty of the west wind. उसकी ब्यूटी और उसकी ड्यूटी को, किसका, वेस्ट विंड को। क्योंकि पोएट किसके समान होना चाहता है, वेस्ट विंड के समान हो। जैसे वेस्ट विंड अपनी ड्यूटी, अपनी ब्यूटी को मेंटेन किए हुए करती है, वैसे वो भी करना चाहता है। विच हेल्प्स द क्लाउड्स टू मूव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन एंड कॉज रेन ऑन अर्थ। और ये वेस्ट विंड ही है जो बादलों के यहाँ से वहां ले जाती है, जिससे बारिश होती है। In this stanza of the poem, the readers observe that the clouds and winds are not full of action, but also act as if they are alive human being. वे कैसा बिहेव करते हैं, अलाइव ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जब वेस्ट विंड को पर्सोनिफाइड किया गया तो ह्यूमन बीइंग जैसा ही नजर आएंगे। Nowhere we can observe such a unique style. Every romantic poet has his specific attributes. Similarly, it is Shelley's poetry characteristic that he blows soul in different objects of nature. उनकी तारीफ में है, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। स्टैंजा थर्ड, एक्सप्लेनेशन। तो स्टैंजा सेकंड में आपने क्या देखा, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो वेस्ट विंड है वो अपनी ड्यूटी और अपनी ब्यूटी को मेंटेन करती है। उसकी ड्यूटी क्या है, वो बादलों के यहाँ से वहां ले जाती है, जिससे रेन होती है। तो वेस्ट विंड का असर केवल ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग के रूप में है, ऑटम के रूप में है, बट इट आल्सो ड्राइव द क्लाउड। जैसे इट स्कैटर्स द डेड लीव्स, इन द सेम वे इट ड्रिफ्ट द क्लाउड। ड्रिफ्ट का मतलब ड्राइव, इट ड्राइव द क्लाउड। There is an explanation of certain images of nature in this stanza Ode to the West Wind. इसमें जिक्र किया गया कि जब वेस्ट विंड मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर, द पोएट यूजेस ब्लू मेडिटेरेनियन क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। वहां पे कैसे जो है जब वेस्ट विंड जाती है तो भूमध्य सागर का जो स्ट्रीम्स है वो कैसे कितना क्रिस्टल नजर आता है। आइल ऑफ बेसी बे का जिक्र किया गया है, वहां कैसे नजर आता है। Palaces and towers वहाँ के as beautiful images in this stanza. He imagines the presence of wind on those areas offered and shows his readers the look and feel of those places when wind blows there. He ends every stanza with the sentence, "Oh, here." It means that he is trying to talk to the wind as he has imagined it as a lively human creature. वो वेस्ट विंड से बात करते क्यों, क्योंकि उनका इमेजिनेशन ये है कि यह लाइवली क्रिएचर है। All the images in this stanza show that sensation is the prominent feature. मैंने आपको पहली बार, sensation is the prominent feature of Shelley's poetry. His strong imagination adds him to the list of most romantic poets in the history of English literature. Romantic poets consider that it is their prime duty to explore nature. रोमांटिक पोएट सोचते हैं उनका प्राइम ड्यूटी क्या है, नेचर की तारीफ करना। दे escape फ्रॉम द रियलिस्टिक वर्ल्ड, और वे रियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहते हैं। एंड फाइंड प्लेजर इन द इमेजिनेटिव वर्ल्ड, और उनको कहाँ पे खुशी मिलती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में। द पोएट डज द सेम इन दिस वर्ल्ड। ही escapes फ्रॉम द हार्श वर्ल्ड एंड फील्स हिमसेल्फ इन द आर्म्स ऑफ विंड। करें कि पोएट भी जो है क्या करता है, हार्श वर्ल्ड से बचता है और कहाँ पर अपने आप को पाता है, विंड की
वेस्ट विंड की बाहों में। और उसका इमेजिन है व्हेन ही सेज इफ आई वर अ डेड लीफ, काश मैं भी जो है किसी डेड लीफ के समान होता, दाउ माइटेस्ट बियर, तो मुझे भी जो है किसकी शक्ति मिल जाती, वेस्ट विंड की शक्ति, या वेस्ट विंड का साथ मुझे मिल जाता। जैसे वेस्ट विंड जो है डेड लीव्स को यहाँ से वहां ले जाती है, वैसे अगर वेस्ट विंड का साथ मुझे मिलता तो मेरे विचार पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते। इफ वाई आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं एक तेजी के साथ भागता हुआ बादल होता, टू फ्लाई विद दी, तो मैं भी वेस्ट विंड के साथ उड़ जाता। दी माने यू माने वेस्ट विंड यहाँ पे। तो ये पोएट का एक इमेजिन है कि वो क्या बनना चाहते हैं। As mentioned earlier, romantic poets love nature from the core of their heart. Shelley is also in the list of romantic poets, therefore he wishes to fly. Shelley wishes to fly. किसके साथ? With the west wind. With the west wind, and wants to see each and every place, explanation of which he gives in the last stanza. और वह जो है हर जगह को देखना चाहते हैं। He requests the wind to take him with it. Reality is harsh because expectation hurt a person too much. Hence, escapism is the only solution of every such problem. बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने लिखा हुआ है कि ये रियलिटी है कि अगर आप ज्यादा किसी चीज की उम्मीद करते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, तो वो जब आप उस चीज को उम्मीद करते हैं तो वो चीजें हकीकत में मिल नहीं पाती। वो चीजें आपको कहाँ मिलती है? केवल तस्वुर करने पर, इमेजिनेशन में ही मिलती है। तो पोएट ये चाहते हैं कि मुझे वेस्ट विंड का साथ मिल जाए, मैं अपने जो है अपने विचारों को पूरे ब्रह्मांड में फैला दूं। तो वो विचारों को फैला तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो कल्पना करते हैं कि अगर मैं बादल होता, अगर मैं डेड लीव्स होता, तो मैं वेस्ट विंड का मुझे साथ मिलता और मैं अपने विचारों को फैला देता। तो एक खूबसूरत बात उन्होंने अपनी भाषा में कही है। ही रिक्वेस्ट द वेस्ट विंड टू टेक हिम विद इट, कि वह भी उन्हें अपने साथ ले चले। और ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड हियर। This stanza evidently shows escapism as the most important characteristics of romantic poetry. Poets a desire to fly to far away land which is free from the pain. ये चीज ध्यान में रखिएगा। पोएट्स डिजायर, पोएट की इच्छा है टू फ्लाई टू अ फार अवे लैंड, कहीं दूर दुनिया में, सितारों की गगन में जाकर के सितारों की दुनिया में चले जाएं, या एक ऐसा जो रोमांटिक वर्ल्ड हो विच इज फ्री फ्रॉम द पेन, जो कष्ट से जो है बिल्कुल फ्री हो, एंड मिजरीज ऑफ लाइफ से, और जो जीवन की तमाम झंझावतें हैं, मिजरीज है, उससे हो। इज इविडेंट दैट ही लव्स फैंटेसीज, और वो फैंटेसी को लव करते हैं। दस ही प्रेज टू द वेस्ट विंड, इस तरह से वो वेस्ट विंड से प्रार्थना करते हैं टू लिफ्ट हिम, कि उन्हें उठा ले अपने साथ। ये उनकी प्रार्थना है कि वेस्ट विंड की मुझे अपने साथ ले चलो, टू लिफ्ट हिम एंड टेक हिम अवे फ्रॉम स्टबर्न मिजरीज ऑफ लाइफ, और जो जीवन की कठिन कष्ट है उससे जो है कम से कम मुझे निजात निजात मिल जाए। तो बहुत खूबसूरत ढंग से ब्लॉग को लिखा गया है, और एक एक स्टैंजा में क्या क्या चीजें, इफ यू गो ना, अगर ये आपके समझ में आ गया, तो मुझे ऐसा नहीं कि पांचों स्टैंजा लेना है। वेन एवर आई डिलीवर, वेन एवर आई एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा, आई विल एक्सप्लेन थ्री स्टैंजा ओनली। लेकिन फिर अगर आपको, अगर पोएम का आप अपने आप से भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या वहां पे वो बात कहना चाहते हैं। In the final lines of this stanza, the poet portrays themes of melancholy. फाइनल स्टेंजा में आपको क्या नजर आएगा? मेलंकली नजर आएगा एंड डिस्पोंडेंस नजर आएगा। द पोएट नोज दैट ही कैन नेवर फ्लाई। अब पोएट हकीकत की दुनिया में आता है, वो जानता है कि वह उड़ नहीं सकता है लाइक द विंड, बट ही विशेष टू डू सो, लेकिन उसकी इच्छा है कि ऐसा हो। हाउएवर व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही कैन नॉट गो, जब वह महसूस करता है कि वह नहीं जा सकता है विद हिम, वेस्ट विंड के साथ, ही बिकम सैड, वह दुखी हो जाता है। Nature always attracts romantic poets, hence he insists on going with it, despite the fact that it is impossible for him to go and fly with the wind. वह जानता है कि वह वेस्ट विंड के साथ नहीं उड़ पाएगा, लेकिन फिर भी वह नेचर का सहारा लेकर, वेस्ट विंड का सहारा लेकर अपनी एक्सप्रेशन करता है। It is impossible for him to go and fly with the wind. He requests that he wants to be the part of the west wind. He requests that he wants to be the part of the west wind until the spring comes and takes over the winter. तब तक वो रहना चाहता है जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाती और विंटर खत्म नहीं हो जाता। विंटर दुख का प्रतीक होता है, स्प्रिंग सुख का प्रतीक होता है। जब तक ओल्ड वैल्यूज खत्म नहीं हो जाते तब तक हम वेस्ट विंड का साथ लेंगे, और जब हमारे साथ वेस्ट विंड होगा तो स्प्रिंग जरूर आएगा। वही लास्ट लाइन उनका था ना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, उस चीज को अनडाउटली
हैव डन कई बार ये आ चुका है। अनडाउटली यहाँ पे अनडाउटली इन द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोयम द पोएट प्रेजेस द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द वेस्ट विंड। तो वेस्ट विंड का डिस्ट्रक्टिव पावर भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ Now you find the concluding part. The poem though does not seem political or social. बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई सोशल इशू डायरेक्ट नहीं कहा गया। Yet some critics argue that there are certain elements in this poem that makes it social. Shelley talks about social change. शेली की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं। द विंड दैट सोज द सीड, जो विंड जो है उस सीज को बो देती है। स्कैटर द लीव्स, जो लीव्स को स्कैटर कर देती है। चेंज द लोकेशन ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स के लोकेशन को चेंज कर देती है। आर सिंबल दैट द पोएट यूजेस फॉर एक्सप्लेनेशन टू सोशल चेंज, यह प्रतीक है कि समाज में बदलाव चाहते थे। कौन बदलाव चाहता था? पीबी शैली। ये लाइन आपको ध्यान में रखना। द विंड दैट सोज द सीड scatters the leaf, change the location of the clouds are symbols that the poet uses for explanation to social change in his ode to the west wind. Thus, the poet shows that the society is moving towards destruction and portrays change as a law of nature. उनका ये मानना था कि सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की ओर जा रही है और इसको बचाना या इसकी हिफाजत करना हमारा धर्म है, इसलिए लॉ ऑफ नेचर होना चाहिए। किसका नेचर? लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर इन द सेंस कि प्रकृति का नियम लागू होना चाहिए। So these things you find very beautifully. It's a very beautiful blog. I have read so many blogs related to the West Wind. लेकिन मैंने पाया कि बहुत सिंपल वे में उन्होंने इसको किया हुआ है। और मैंने बार बार बताया कि ब्लॉग राइटिंग आज के समय का एक बहुत बड़ा फैशन हुआ है। एंड यू फाइंड दिस थिंग। सो यू फाइंड हियर, और ये चीजें बहुत मायने रखती है कि कैसे क्या चीजें हैं। एंड आई थिंक कि आई हैव डन आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ने को मिला और आप उसको समझ सकते हैं अच्छे ढंग से। और मैंने इस चीज को इसलिए अडॉप्ट किया है कि एक तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से वो चीजें हैं जो मैं पीडीएफ फाइल में भी अब प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि हाउ टू चेंज इट इनटू पीडीएफ फाइल, बट नाउ आई केम टू नो। तो मैं उसको पीडीएफ फाइल में भी, ताकि आपको मैटर को लिखने में या उसका प्रिंट आउट निकलवाने में प्रॉब्लम ना हो। बस मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो मेथड ये मैंने अडॉप्ट किया है, इज इट मीन्स एम आई इन राइट डायरेक्शन, कि उसके पोएट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर भी बात कर लिया जाए। एक्सप्लेन तो हम सारी पोएम का एक एक लाइन का कर ही रहे हैं, या हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं कि हम सीधे उस पे एक्सप्लेनेशन पर आए? नहीं। Sir, it's better way, sir. ओके ओके, यू कैन गिव योर रिस्पांस इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको कोई परिवर्तन चाहिए या जैसा भी फील हो रहा होगा, यू कैन गिव योर रिस्पांस। मैंने किसी भी पोयम का 3 हेड से लिया है। अबाउट द पोयम, क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, फिर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। एक चीज ये रहा है। दूसरा चीज ये है कि आपको मैं अब हैंड रिटन मैटर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हैंड रिटन मैटर में समटाइम्स उसका बहुत ही मतलब ब्लर हो जाता था। जब उसका मैंने देखा कि मैं एक बार उसको शेयर करिए तो बहुत अच्छे ढंग से नहीं आता था। तो जो हैंड रिटन मैटर में होगा वही चीज मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। So just go with that notes, take it in PDF form which is available, you can note down। और आपको बाकायदा बता दिया जा रहा है ये लाइन है, ये थॉट है, ये चीजें हैं। एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन कि उसका जितना भी लाइन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे क्या है। ठीक है, ओके।